हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता एज इट इज के श्लोक नंबर 11 का अध्ययन करेंगे। आज का दिन अति पवित्र है। आज मोक्षदा एकादशी है, जिसको हम गीता जयंती के रूप से भी जानते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्लोक नंबर 11। श्री भगवानुवाच अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून् अगतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः। अशोच्यान् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूं च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान ने कहा, अशोच्या, जो शोक के योग्य नहीं है। अन्वशोच, शोक करता है। त्वम, तुम, प्रज्ञावादान, पांडित्यपूर्ण बातें, च, भी, भाष्य से कहते हो, गत, चले गए या रहित, असून, प्राण, अगत, नहीं गए, असून, प्राण, च, भी, न, कभी नहीं, अनुशोचन्ति, शोक करते हैं, पंडिता, विद्वान लोग। श्री भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान ने तत्काल ही गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात वो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता है। In the previous shlok we have seen that Arjun is bewildered and is unable to control his mind. To understand Arjun's true condition, we need to visualize the warlike situation and place ourselves in the place of Arjun. Then only we will be able to experience Arjun's trauma. Arjun, unable to hold himself, he surrendered to Shri Krishna, saying, Shishyastaham Shadimam Tvam Praparnam, which means, Krishna, I am completely surrendered to you, and now you guide me as to what to do. We have seen Krishna smiling at Arjun in the last verse, as Krishna never expected that Arjun will ask him to become his guru. But the moment Krishna accepted the position of guru, then he immediately became serious, as the relationship between a student
and a teacher is not casual. Now Krishna chastises Arjun by saying that Arjun, you are giving so many reasons for not fighting as if you are very learned or pandit. In this verse, the word pandit is used to emphasize one who has full knowledge of the living entity, soul, and the controller of the both. Living entity or jiva is a combination of the 5 elements of matter, that is earth, sky, water, fire, and air. Soul is the part and parcel of the Supreme Lord, and the controller of the jiva and the soul is the Supreme Personality of Godhead, that is Shri Krishna. A learned person or a pandit is expected to have a clear knowledge of this. In the previous verse, Arjun gives various reasons for not fighting, which is his duty. The foremost responsibility of a Kshatriya is to protect his people. Arjun doesn't want to kill his enemy out of kindness and compassion. But the question is this, that to whom is Arjun showing compassion? Krishna wants Arjun to know his true self, whether he is his body or his soul. Though Arjun is Gunakesh and he is fully aware of his constitutional position, but as he is playing the part of an ignorant person, so he pretends to be attached with the bodily concept of Bhishma Pitamaha, Acharya Drona, and all his cousins. Srila Prabhupada explains to us our true self with the example of a drowning man whose coat and pant is saved, but the man drowns. In the same way, our material body is just a covering of the soul. And if we only try to save our body and not the soul, so it's absolutely useless and meaningless. The body passes through 6 stages, namely birth, then it grows, then it procreates, and then it becomes old and weak. Then the old and weak body is attacked by many diseases, and finally it dies or vanquishes. Every living entity has to pass through these 6 stages: Janm, Jara, Vyadhi, Mrityu. So even if we try our level best, still we cannot save our body. But the soul, which makes the body run, is completely unaffected from these stages. The soul is neither born nor it passes through any kind of these stages. Krishna wants Arjun to know that he and all who are present in the battlefield are not their bodies, but their true identity is their soul. We can understand it very well with the example of when someone in our family passes away. So everyone says he or she is no more, but the body of that person is still in front of everyone. So only during the time of passing away of someone, everyone gets to understand the true knowledge of the body and the soul. Due to wrong attachment with the body of his own people, Arjun was lamenting. Krishna says that a learned person or a pandit doesn't lament either for a living or a dead body, because he knows that body is temporary
and soul is permanent, and that soul keeps on taking new body once the body becomes old and useless. In the same way, as we replace our old dress with a new one, Srila Prabhupada explains that there is no direct connection between two living entities. This can be very nicely understood with the example of a ceiling fan. The blades of a fan are like the family members, and no two blades are directly connected to each other. It is only connected with the center of the fan, which is the motor. So now we can apply this example in our family, that the blades of the family are the family members and the center motor is Shri Krishna. The moment the motor is removed, all the blades fall off. So the main connecting link is Shri Krishna in between the family members. So we need to understand clearly that we have direct relation with Shri Krishna and indirect relation with all the family members. अर्जुन के शोक का कारण यह है कि वह अपने आप को और अपने परिवार के सदस्यों को शरीर मान रहा है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि न तो अर्जुन और न ही युद्ध के मैदान में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति शरीर है, बल्कि वे सभी आत्माएं हैं। शरीर तो नाशवान है क्योंकि शरीर पंच तत्व से बना है और इस शरीर को चलाने वाली आत्मा अविनाशी कृष्ण का अंश है, इसलिए आत्मा नाशवान नहीं है। श्री कृष्ण एक परफेक्ट टीचर हैं और अर्जुन उनके परफेक्ट स्टूडेंट, जिसके माध्यम से श्री कृष्ण हमें हमारे असली अस्तित्व का ज्ञान दे रहे हैं। इस भौतिक जगत में किसी भी विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय में यह ज्ञान नहीं दिया जाता, तभी तो हम सभी इतनी सारी डिग्री प्राप्त करने के बाद भी इतने महत्वपूर्ण ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। यह ज्ञान एकमात्र भगवद गीता एज इट इज में ही उपलब्ध है, जिसके अध्ययन के द्वारा हमें अपनी असली पहचान मिलती है कि हम शरीर नहीं हैं और हम आत्मा हैं, जो कि कभी नष्ट नहीं होती, अर्थात हम भी कभी नष्ट नहीं होंगे। अर्जुन जो दया दिखा रहा था वह सिर्फ शरीर के लिए था और आत्मा के लिए नहीं, और ऐसी दया को भौतिक दया कहते हैं क्योंकि हमारा असली अस्तित्व तो आत्मा है, शरीर नहीं है। भगवद गीता यथास्वरूप या भगवद गीता एज इट इज ही एकमात्र ग्रंथ है जो हमें हमारे सही परिचय से पहचान करवाता है, और यही भगवद गीता का उद्देश्य भी है। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि मात्र 4 लाख है और एकमात्र मनुष्य ही अपने आप को पतन से या निम्न योनियों में जाने से बचा सकता है। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान अनिवार्य है। भगवद गीता कोई हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र अर्जुन को युद्ध के मैदान में सभी योद्धाओं के समक्ष कहा था। इसका अर्थ यह है कि यदि हम इस ज्ञान को भक्ति एवं समर्पण के भाव से पढ़ेंगे तो हम भी अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद का पात्र बनेंगे। श्रील प्रभुपाद का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रत्येक व्यक्ति तक यह ज्ञान पहुंचे, क्योंकि यही एकमात्र भौतिक दुख
और दर्द की दवा है। गीता के ज्ञान को प्राप्त कर अर्जुन अपनी हर समस्या का सामना करने योग्य बन गए और विजयी हुए। ठीक उसी तरह हमारे पास भी भगवान आए हैं गीता के ज्ञान को देने के लिए श्रील प्रभुपाद के माध्यम से, ताकि हम भी अपनी सभी समस्याओं से बाहर निकल आएं और श्री कृष्ण को अपने मन में सदा धारण करके अपने सभी कर्तव्यों को पूरा करें। प्रायः भगवत गीता लोगों को रिटायरमेंट के समय भेंट स्वरूप दिया जाता है। कितनी सोचने वाली बात है कि भगवत गीता, जो कि सर्वोत्तम ज्ञान है, उसको सेवा अवकाश प्राप्त करने के बाद पढ़ने के लिए सोचा जाता है। भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने अर्जुन को तब दिया था जब वे युद्ध के मैदान में युद्ध करने जा रहे थे, अर्थात अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने जा रहे थे। तो इससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि भगवत गीता का ज्ञान हमें अपने जीवन के प्रारंभ से ही लेना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकें और धर्म के मार्ग में रहकर अपने सभी कर्तव्यों को पूरा कर सकें। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आज मोक्षदा एकादशी के दिन हमने भगवत गीता का अध्ययन किया। आज के दिन 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। इस दिन को हम गीता जयंती के रूप में भी मनाते हैं, अर्थात भगवत गीता का जन्म दिवस। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। भगवत गीता भगवान के मुख से निकला हुआ परम पवित्र और कल्याणकारी गीत है। हम सबका मंगल निश्चित ही है। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। आइए हम सब मिलकर आज गीता जयंती के दिन, मोक्षदा एकादशी के दिन यह संकल्प करते हैं कि प्रत्येक दिन हम भगवत गीता का कम से कम एक श्लोक का अध्ययन जरूर करेंगे, अथवा प्रत्येक रविवार को जब मैं आपके साथ भगवत गीता के श्लोक का अध्ययन करती हूँ, आप हमारे साथ जरूर इसमें भागीदार होंगे। हरे कृष्ण। मैं सभी सुनने वालों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आप सबके सहयोग से ही मैं यह कर पा रही हूँ। मुझे आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।